Arnab Banerjee again asks, "Hey Kiku, please talk about the whole Ram Rahim etc. controversy. Uh, did you feel vindicated when he was arrested? Just kidding, but seriously, did you?" this is his question. Just ये kidding, इनका but सवाल है, हमने कुछ seriously. नहीं बोला, ये उनका सवाल है, ठीक है? We said nothing. हाँ. But I've spoken about the incident many times, yeah. So हाँ. now तो it's बहुत पुराना incident हो गया, लेकिन when it happened, obviously it was like a shocker कि आप हाँ. टीवी पे क्या उतना मतलब आप एक जोक भी नहीं बना सकते. And it's not that there's someone. See, when you allow yourself or you come onto our platform, I mean, I wouldn't call it our, but whatever, it's television and film का जो platform है. If you've made a film, तो film के spoofs बनेंगे. कौन सी फिल्म के स्पूफ नहीं बने भाई? मतलब शोले अगर सबसे बड़ी हिट है तो उसके ऊपर भी स्पूफ बनते हैं. स्पूफ तो करेगा ना कोई. तो नाउ ही हैज मेड फिल्म्स. या ही मतलब राम रहीम हैड 3 फिल्म्स आई थिंक. 2 तो थी, एक में तो गौरव भी था. तो क्या बात कर रहे हो? बताओ. ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है. This is, forget the whole, ये सारे सवाल बंद करो. We want to know about Gaurav Gera और गुरमीत राम सिंह. मुझे लग रहा था कीकू ना बोले अभी निकला कीकू. अब ठीक है यार, ठीक है. मैं अभी गूगल करने वाला. हाँ बताओ. कौन सी फिल्म थी वैसे? लव चार्जर? नहीं, फर्स्ट वन वाज कुछ क्या नाम था उसका? मुझे नहीं पता. MSG शायद. मैसेंजर ऑफ गॉड. MSG. ओह माय गॉड. Oh, तो how did that happen? अरे how did that movie कंप्लीट करो. हाँ सॉरी. हाँ ठीक है चलो मैं अपना कंप्लीट कर देता हूँ. तो एक फिल्म में तो खैर गौरव थे. so I was quite shocked कि यार ये क्या मतलब, because उनकी फिल्म है and the film के अंदर जिस तरह के, so you create a spoof यार on everything. So it was quite shocking, but yeah, I got to know that he's a very powerful person in the state, in Haryana, and then there was a lot of following of the man, and because of which he really thought that someone should say sorry, then he should. My only thing was कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम कुछ चीज कह देते हैं कॉमेडी में या ये, और किसी को कोई आपत्ति है तो कोई आप अपना केस भी फाइल करें, आप जो करना है करें. मतलब you want to go to the legal way, go the legal way. If you try to contact me and tell me that this is wrong, send me an email or find my contact somehow and want to talk to me, वो सब भी ठीक है. But this legality was really weird. I got no कोर्ट समन्स और कोई ये कि आपके ऊपर केस फाइल किया गया है तो जाके मैं भी कोई लॉयर रखूं. One day people come and say कि चलिए we have to go there, we have to go to Haryana. I said why? Because ये केस फाइल हुआ था, so now you have to come there to the court over there. I said ऐसे थोड़ी होता है. So my lawyer will reply, but like overnight there was like pressure कि you have to go there and solve things there. And now my point is that that is not my area, it's not my territory. I don't know people. I mean, I still know people here. And कोर्ट जैसे भी होता है, मतलब कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स है और जिस तरह लीगैलिटी चलती है उस तरह से मैं चलने को तैयार हूँ. पर इस तरह तो लीगैलिटी चलती भी नहीं है ना. आप एक रात को बोले आपके ऊपर केस है, चलिए आज रात को चलिए हम कल सुबह वहां पे पेश होते हैं. That's not the way things work. So they were working in a weird way is what I had a problem with कि ये क्या तरीका है यार. Anyway, मैं गया वहां पे और एक दिन में चीजें सॉल्व भी हो गई. Because thankfully, I mean, thanks to everyone who's also watching, there was a lot of this thing on my side. The entire industry was talking, and beyond the industry, people were talking that if you crack a joke and because of which you can get arrested, I mean, that's really pushing it. I mean, you can't, allow people to do that. It's wrong. तो वो खैर एक दिन में मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ. एंड गौरव वाज इन्वॉल्वड इन दैट शो आल्सो. अरे ये भी तो बताना था. It's not only the film that he was working in, but this show में मैंने ये परफॉर्मेंस की थी. उस शो का होस्ट था गौरव, जिसने इंट्रोड्यूस किया था एक्ट के. अब आप देखेंगे कीकू को इन दिस वे. बताओ ना गौरव. मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरव का हाथ सब चीजों में, लाइक ही वाज, ये सब कंस्पिरेसी है. ही वाज ट्राइंग टू डिरेल. भोला बन के बैठा रहता है, पर हर जगह ये सब वैसे कांड. भाई आप भोले की बात कर रहे हैं तो I just googled MSG the Messenger and Gaurav Gera played a character in MSG the Messenger called Bhondu. See? Which he's pretending to be. I think ये सब साजिश है. He's trying to basically derail your career. Oh yeah.
कीकू से पहले ऐसे कराएंगे, उसके बाद वो जेल में जाएगा। यार तो एक्चुअली क्या हुआ था सौरभ, आई वाज इन दिल्ली, मैं झुमरू कर रहा था। झुमरू एक लाइव शो था किंगडम ऑफ ड्रीम्स का, सो आई वाज देयर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। तो बीच में एक मेरे डायरेक्टर फ्रेंड है जिनके साथ मैंने एक टीवी शो किया था, बब्बन भाई वर्सेस विमला था, इन 2007 और मे बी लेटर। सो ही कॉल्ड मी, ही सेड ऐसे ऐसे मूवी है एंड ओनली फॉर भक्त लोगों के लिए है, तो रिलीजियस मैसेजेस, सोशल मैसेजेस हैं। सो आई न्यू द डायरेक्टर, आई थॉट कि चलो ठीक है। मैं गुड़गांव में, तो गुड़गांव से मुझे लगा था कि सिरसा, दिस इज सिरसा, so I thought Siriska, so I thought Siriska तो 1.5 घंटा दूर है, it's hardly a big deal, I'll go have fun, shoot and small movie, nobody will watch। मुझे लगा था कि भक्त लोगों की है कि मतलब भक्तों के लिए कुछ एक शॉर्ट फिल्म है। मैंने देखा है दूसरे एक्टर्स भी करते हैं, I've never done it, so I thought चलो एक बनता है कि कर लिए रिलीजियस काइंड ऑफ मूवी। So कर ली, उसके बाद I went there and it was like eye opening। पहले तो वो 1.5 घंटा दूर नहीं था, the गाड़ी went on, it went on for 6 hours। I kept asking अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, क्योंकि मेरे दिमाग में सिरस्का था and it was Sirsa which is 6 hours away। So गाड़ी में 6 घंटा मैं बैठा था। I did that actually 3 times, 3 schedules थे उसके या 2 थे and I went there। तो अलग ही दुनिया थी। मैंने थोड़ा गूगल किया था about who the people are and कौन बाबा है, तो I also saw a lot of good things that he has done, like charity, right, blood donations and planting trees and he's got कुछ 11 तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। सो आई थॉट मे बी इट्स लाइक यू नो गुड कॉज को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो व्हाई नॉट। सो आई वेंट एंड डिड इट। उसके बाद पता लगा द मूवी इज रियली बिग एंड इट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड रिलीज हैपनिंग। तो ऐसे करके कर लिया मैंने, ठीक है। अब वो खत्म हो गया। उसके बाद एक जी टीवी पे था दिवाली धमाका या समथिंग, वी वर होस्टिंग, मी एंड अली असगर वो होस्टिंग, और उसमें अली की कुछ लाइंस थी कि एक बाबा है जो स्टंट्स भी करते हैं, हवा में भी उड़ते हैं, ये वो। और पहले वो बोले, छोटा सा लिंक था, ऐसे कोई बहुत लंबा नहीं था, इट वाज जस्ट अ लिटिल लिंक। सो आई सेड, खत्म हुआ, आई सेड अली आई श्योर यू वांट टू से दैट बिकॉज़ दिस बाबा इज रियली बिग एंड फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, मैं देख चुका हूं। तो अली भाई सेड अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था। तो ही सेड, राइटर से पूछा कि भैया ऐसे इज इट फाइन टू से ऑल दिस, एंड द राइटर सेड ऐसे करता वो आगे से चला गया। सब राइटर्स, तुम राइटर्स एक्टरों के कंधों पे गन चला देते हो, एज एन द हु इज कॉट द एक्टर्स। ठीक है, राइटर को तो आई डोंट थिंक ही वाज इन द एफआईआर कीकू। No, he was no, he wasn't there in the FIR. In the FIR also, all you guys were all still mentioned. You were there, Ali Bhai was there, and all the other people, other actors हैं, उनके लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है जो वो चीट शूट करते हैं ना, कि आप अपना परफॉर्मेंस दो स्टेज पे, आपने अपना एक्ट किया, डांस वांस किया, फिर जाके ऑडियंस में बैठ के ऐसे स्टेज की तरफ देख के तालियां बजाओ, तो ये शॉट हम कहीं भी शो में लगा देंगे। तो वो बेचारे अपने शॉट देख के चले गए, और जब मैं बाबा बन के परफॉर्म कर रहा हूँ, वो ऐसा ऐसा ये ताली बजा रहे, उन सब के ऊपर भी एफआईआर हो गया कि आप ये एक्ट देख के इस तरह खुश कैसे हो रहे हैं, तालियां कैसे बजा रहे हैं। उन बेचारों ने तो देखा भी नहीं था, वो तो अपने चीट शॉट देख कर गए थे। अरे मुझे तो पता भी नहीं था, जब अली भाई और मेरे जब डायलॉग्स हुए अबाउट बाबा एंड दिस एंड दैट, मुझे नहीं पता था कट टू इज कीकू, क्योंकि कीकू का किसी और दिन शूट हुआ, वो एडिट करके बैक टू बैक आया। उसके बाद कीकू शोड मी द पिक्चर ऑन हिज फोन, ही सेड देख मैं ये बाबा राम रहीम बनाऊं। आई सेड अरे वाह, मुझे लगा कपिल के शो में किया होगा। आई हैड नो आइडिया कि हमारी जो लाइंस बोली गई हैं उसके बाद कीकू का एक्ट डाला जाएगा। तो अब दिखा क्या टीवी पे, मैं और अली बोल रहे हैं, कट टू कीकू दिखा और पूजा बनर्जी बैठ के ताली बजा रही है। सो बस एफआईआर अगेंस्ट कीकू, अली भाई, मी, आई वाज थर्ड। मैं तो चुप रहा, मुझे टाइम्स नाउ वगैरह के फोन आए, मैंने हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही करके आई नेवर स्पोक एनीथिंग, बट आई वाज रियली वरीड फॉर कीकू। मतलब वी हैड कॉल्ड पता करने के लिए क्या है, सब ठीक है कि नहीं, क्या हो सकता है। सो वी वर कॉलिंग हरियाणा में, आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो वी वर कॉलिंग ऑल द पीपल, फाइल But भाई, I'm saying it's serious shit, yeah. It was serious stuff in the sense that मैं भी चला गया वहां पे कि चलो एक कोर्ट में अपीयर करके जरा बेल वेल लेने का प्रोसेस होगा, कर लेते हैं। There were about 3,000 to 3,500 people outside the police station waiting for me to appear. तो मुझे गाड़ी में लेकर गए, मैंने उन लोगों को देखा, फिर मैं जब कोर्ट में मुझे पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले गए, वहां पे the cops had to actually hold hands and make a path in the middle of which I could walk, because those people were so many. They wanted to come close to me or whatever, you know, like they were all there and they were angry. They were angry.
And like, thank God to the cops that they actually kind of saved me by at least there were 50 or 40, 50 cops probably. They got me into the court and they got me out of the court and put me in the car. And when we got into the car, my first in the morning, my bail was rejected. They were like, कि bail होगा लेकिन शाम तक होगा. तो मुझे वो कॉप ने बोला अभी तो वैसे टेक्निकली यू आर नॉट रियली अरेस्टेड वी कैन गो बैक टू द पुलिस स्टेशन बट आई वुड सजेस्ट कि आप जेल चले जाइए. आई वाज लाइक व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट. ही सेड कि नहीं आप क्या कीजिए ना, जेल की लोहे की बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, यहाँ पर ये लोग का यही टारगेट है कि कीकू शारदा अरेस्ट होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए. तो आप जेल में जाके आप जेलर के कैबिन में बैठो, आप कुछ नहीं हुआ, आप वहां पे जाके बैठो, आप कोई बिहाइंड बार्स नहीं हो, लेकिन कम से कम ये लोग कन्विंस हो जाएंगे कि आप जेल चले गए. और जेल में nobody can come close, nobody can come. I mean, how many ever people are there, they'll have to disperse and go away because you are again inside that the jail ka this thing. So then I went there, yeah, I sat in like hanging around in the jail, like chilling out. But one very funny thing I have to narrate in this is very cute, that I was sitting in the jailer's cabin and all. So another cop comes in, like like an assistant cop or something. He comes in, "Arey sir, aap yahan pe?" And I was like, they had called for something to eat. So they told me कि जेल का खाना खाइए सर, अच्छा होता है, ऐसा नहीं है. And आलू गोभी का सब्जी है, रोटी है, and all. So I said, हाँ ठीक है, I was hungry. So I was eating, and this other cop comes and says कि अरे सर आप यहाँ पे क्या खाना खाने आए हैं? Who the hell comes to a jail to eat khana? Why would I do that? But bro, you got to listen to this. He had logic. He said, सही नहीं सर, आप गलत मत समझिए. क्या होता है कि यहाँ पे ना और बहुत जगहों पे जहां पर भी लोगों के ये कुंडलियां देखी जाती है और कुंडली में देख के लिखा होता है आपकी कुंडली में, और वो आपको जो ज्योतिष है बताता है कि आपकी कुंडली में जेल का खाना लिखा है. टू अवॉइड अरेस्ट दे कम टू दैट प्लेस, दे ईट फूड सो दैट आपकी कुंडली में अगर जेल का खाना लिखा है तो आप जाके जेल का खाना खा लो, तो आप अरेस्ट तो नहीं होगे, कम से कम आप वो हटा सकते हो अपनी कुंडली से. Oh bro, I was amazed that this kind of shit happens, yeah. आपकी कुंडली में जेल का खाना लिखा है. So Kiku, ये this has happened to you? जेल का खाना लिखा है? मेरे जेल का खाना खा लिया. हाँ, हो गया. मेरी अगर कुंडली में लिखा था, जो मैं देखता नहीं इतना ज्यादा, I don't know, but हाँ अगर लिखा था तो मैंने खा लिया. कुंडली आगे भी जाता. Yeah, sure, yeah, gotcha. I'm just imagining a jail which is also a restaurant where like हाँ आप क्या लेंगे, हाँ कुंडली स्पेशल बुफे ये है हमारे पास सब. That's damn funny यार.